Yeah, 10 off his first over. I think do that again. They're moving along nicely, Nepal. And that is a massive top edge into the crowd. Watch out! Into the Indian contingent. They were trying to catch it. Boundary 6 for Nepal. How far does this top edge go? It is amazing. I mean, Shivam Dubey is not the quickest bowler in the world, not by any stretch of the imagination, but it is such a swing at the ball that once it finds the edge, it just flies over the boundary. India have used 6 bowlers. I'm not sure Dubey is going to get another one after this. There isn't really a need. And that will go into the crowd again. Oh, I think it just about missed up. Yeah, throw it back. There you go. Hope she heard it coming. He's finding his stride now. Airy, that's back-to-back sixes. This one out the middle of the bat. Right, an opportunity at a very big over here. Dubey will be rattled. Still 3 balls of it to go. He has been expensive. It's going to go all the way again. Just. This is sweet. This is a sweet shot. Because Dubey this time bowls a slower ball. And Airy has to wait as he comes charging down the wicket. And flat bats it for 6. Talking about his height, he had to kind of almost hop and reach it. Wow. 1-1-1 for 4. Can he keep this momentum? They will look, but we've told him. Yeah, quite comfortably. Can they keep this momentum? You'd almost be happy it went for a review just to interrupt that momentum. Conversations. Has come all the way from the other side of the field to have a conversation, and he is going to stay over at keep extra cover. Well, Arshdeep Singh has 2. He hasn't been at his best, but he does bowl well at the back end, the left armour. And that is going to be a race to save the... And they just about saved the boundary. Good work in the jeep again from India. This is excellent fielding. Yeah, Arshdeep Singh has 2, the left arm seamer. Ravi Bishnoi has 1, the spinner. Avesh Khan has 2. So you would think that Dubey won't bowl again, and maybe Washington Sundar will bowl just the 1 over to make up the 4. It's going to run hard, but it'll just be a single. Well, that was a bit breathless, wasn't it? I think 21 off the over. Certainly those 3 sixes. पचास सालों से जो बना इस देश की शान वो है अमूल चीज। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। नाउ फ्रूट्स ऑन प्लेन। देखो किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का। एक बार फिर स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पे, और शानदार ओवर रहा था पिछला जिसमें डेविड ने 3 छक्के लगाए थे शिवम दुबे गेंद पे, और अच्छी रनिंग विकेट पे 2 रन चुरा लिए बल्लेबाजों ने। 122 रन 4 विकेट नुकसान पर। स्वागत करना चाहूंगा अजय मेहरा का कमेंट्री बॉक्स में। शुक्रिया प्रवीण जी।
अगर आप देखें एरी ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और ये अच्छा मुकाबला उनके लिए किया है। गेंद के साथ अच्छा कार्य किया। फील्ड में याद है अंतिम ओवर में जो छक्का बचाया था और अब बल्ले के साथ अपना योगदान देते हुए, हालांकि अभी भी कठिन है नेपाल के लिए, पर एक उम्मीद जागी है। जैसे पिछला ओवर घटा था वो बड़े शॉट्स लगाए थे बिश्नोई। इस बार पुल करने का प्रयास, टाइमिंग वैसा है नहीं और सीधा फील्डर के हाथ में। साई किशोर ने कोई गलती नहीं की। अच्छा कैच डीप में, बड़ी विकेट मिलती है, एक और सफलता। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके करार जगाया। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है। तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। क्यों है? वो तेरी टैंकें चल क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि तेरे हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है ना। ये भी सही है। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अच्छी गेंदबाजी, एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और ये एक समस्या है, जब नया बैटर आता है थोड़ा सा समय लेता है। कामी आए हैं नए बल्लेबाज नेपाल के लिए। हालांकि अच्छा मिश्रण दिखाया है रवि बिश्नोई ने। गुगली का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। जोरा भी अब ज्यादा देर से क्रीज पे है नहीं। भारत अभी चौथे रैंक पे, अगर मेडल्स की बात करें, चौथे मैदान पे। और अब एक उम्मीद जरूर है भारतीय पुरुष टीम से कि ये जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला अगर आप जीतते हैं तो अब फिर वो अब गोल्ड मेडल की उम्मीद जरूर जागेगी। भारत कोशिश रहेगी भारत की कि ये क्रिकेट में दूसरा मेडल लेके आए, क्योंकि वो महिलाएं ऑलरेडी एक मेडल जीत चुके हैं, गोल्ड मेडल। और भारतीय कोशिश, अच्छी गेंद गेंद को निकाल दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। और मिशन कर रहे हैं वहां पर, तो सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। अभी भी नेपाल काफी दूर है 70 रन और बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, और 5 ओवर खेल बाकी है। मुश्किल कार्य जरूर है मगर असंभव नहीं है, अगर हालांकि अभी बैटर्स उतने नहीं बाकी बचे हैं। एरी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, 3 छक्के लगाकर एक उम्मीद जगाई थी नेपाल के कैंप में। जोरा भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पर फील्ड का जरूर मिलेगा। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 128, 5 विकेट नुकसान पर। क्यों है? ये लंबी बाउंड्री भी है और काफी बिल्कुल साइड स्क्रीन के सामने जाके गेंद गिरी। 69 रन 29 गेंदों में। इस बार वो कट करने का प्रयास, चूके वहां पे। अगर भारतीय गेंदबाजी की बात करें, तीसरा ओवर है अर्शदीप का। अवेश खान 2 ओवर 16 रन 1 विकेट। रवि बिश्नोई को 3 सफलताएं मिली और सबसे अच्छी गेंदबाजी की रवि बिश्नोई ने। 4 ओवर 24 रन और 3 विकेट। मात्र ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए। शिवम दुबे ने 2 ओवर में 31 रन। ये एक थोड़ा सा भारत का वीक लिंक कहा जा सकता है, कमजोर कड़ी कही जा सकती है, जहाँ की हालांकि छठे बॉलर के रूप में शिवम दुबे का इस्तेमाल किया गया था। अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की है, 1-2 ओवर के बाद फिर एक गेंद को निकाल दिया। ये ओवर काफी महंगा साबित होता है और एक और अच्छी बाउंड्री स्ट्रोक छक्का आता हुआ वहां पर जोरा के बल्ले से। प्रयास कर रहे हैं एक मैच में अंतिम चमक से बना होगा भारतीय गेंदबाजों को कहीं ना कहीं अंकुश लगाना होगा, क्योंकि 12 रन इस ओवर में आ चुके हैं और ये काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ अर्शदीप का। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अगर आप स्लॉट पे गेंदबाजी कर रहे हैं ना, फिर आसान है, और इंतजार ही कर रहे थे बैकफुट पे।
वो जो एंगल है वो भी मददगार साबित हुआ, क्योंकि एंगल के तहत गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, तो केवल वो टाइमिंग चाहिए था। फिर से ये देखिए बहुत दूर गेंद जाके गिरी है। पहले हमने सीधे बैट से देखा था, ये खेमा नेपाल का, ये खुश नजर आता हुआ, एक उम्मीद जागी है, एक उम्मीद ये है कि हम करीब पहुंच रहे हैं। कठिन है, पर जैसे आपने कहा प्रवीण भाई, अब नामुमकिन नहीं है। 63 रन चाहिए 27 गेंदों में। कहते हैं खेल ऐसा है T20 का, बहुत जल्दी बदल जाता है, और ये खेमा भी चिंतित होगा। VVS लक्ष्मण, सराज भतुले, इस बार सीधे बैट से, फील्डर डी पे तैनात और सीधा हाथ में, यानी कि एक और सफलता मिलेगी यहां पे। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। नो फ्रूट्स ऑन प्लेन। देखो किधर है, ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉफी। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और अच्छी बल्लेबाजी के बाद एक प्रयास शुरू किया था, फिर गेंद को बाउंड्री स्ट्रोक खिलाने को लगा और गेंद सीध चली गई वहां पर जायसवाल के हाथों में, और एक और सफलता भारत को मिलती हुई। 6वां विकेट गिरा वहां पर नेपाल का, कोशिश करते हुए नेपाल के खिलाड़ी, मगर अब विकेट भी ज्यादा गिरते जा रहे हैं। अब बहुत ज्यादा बल्लेबाज नहीं बाकी हैं। बल्लेबाज के रूप में अच्छी गेंद थी वहां पर, बाहरी किनारे गई, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। 1 रन जरूर मिला बल्लेबाजों को, और अर्शदीप ने वापसी की थी वहां पर। इस ओवर में 2 छक्के जरूर लगे थे उस गेंद में। रिंकू सिंह अच्छे फील्डर के रूप में उभर कर आए हैं। जहां भी देखा कि उन्होंने कैच जो पकड़ा था, रिले कैच, बहुत अच्छा कैच पकड़ा। और यह है भारत की मेडल टैली जो कल तक थी, आज एक मेडल और ऐड हुआ है। और आर्चरी में भी भारत की टीम काफी अच्छा प्रदर्शन करके हुए सेमीफाइनल फाइनल में बढ़ती जा रही है एशियन गेम्स में। 141 6 विकेट नुकसान पर यह 16वां ओवर चल रहा है। 203 का लक्ष्य पीछे करते कामी 1 रन बनाकर खेले जीके झा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जिन्होंने अभी खाता खोला था। ये हवा में खेला गया स्ट्रोक। देखते हैं कि ये बैकवर्ड बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए अभी भी प्रयास जारी है। 147 6 विकेट नुकसान पर 16 ओवर की समाप्ति के बाद। 伊沃尔边界6分。 कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन, डूबी डूबी डू, जिंदगी मक्खन। अमूल बटर। पतली पतली डिलीशियस। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना। और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अंतिम गेंद पर एक छक्का लगा और एक बार फिर उम्मीद जागी हमारे नेपाल को। 56 रन चाहिए 24 गेंदों पर। कार्य मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। आवेश खान आए हैं अपना ओवर लेकर, और एक अच्छी गेंद वहां पर बल्लेबाज को बीट किया वहां पर। गेंदबाजों को सही लाइन और पे गेंदबाजी करनी होगी। अजय में ये जो रन लक्ष्य है मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। क्योंकि पिछला ओवर आप देखिए ना, 19 रन आए हैं और गेंदबाजी कौन कर रहे थे? अर्शदीप, जिनके पास वो अनुभव है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव है। और क्योंकि बाउंड्रीज भी इतनी बड़ी है नहीं, अब कई बार वो मिस हिट भी अब कैरी हो जाता है, 6 रन में कन्वर्ट हो जाता है। इस बार उठा के खेला है और साइड पे इनफील्ड को क्लियर किया। 4 रन और केवल गेंद को दिशा दी थी। और वो बाउंड्रीज आती रहेंगी ना, तो ये नहीं कि नेपाल जानती है कि आप जितना करीब पहुंचेंगे उतना बेहतर है। एक आध बड़ा ओवर अगर आता है तो वो उनके पक्ष में जाएगा। 9वीं बाउंड्री इनिंग्स की, और बहुत ही खूबसूरत शॉट था। केवल गेंद को दिशा दी वहां पे।
पिछले ओवर में 19 रन आए थे, अगर 18 रन के औसत से रन बनाते हैं तो शायद नेपाल ये मैच जीत सकता है। और अच्छा शुरुआत हुई है पहले ओवर में, हालांकि पहली डॉट बॉल थी, फिर बाउंड्री आई, 9 चौके और 12 छक्के लगे हैं। ये दर्शाता है कि बाउंड्री कम छोटी जरूर है और प्रयास भी कर रहे हैं, तो फिर बाउंड्री स्ट्रोक्स आ रहे हैं। अच्छी वापसी वहां पर आवेश खान की गेंद को शर्मा विकेट कीपर, हालांकि बल्लेबाज थोड़ा सा नाराज थे कि शायद देख रहे थे वाइड का इशारा होना चाहिए था, ऊंचाई काफी थी, पार करने में गेंदबाज के पक्ष में जाता हुआ 52 रन चाहिए 21 बॉलों पर। भारत को वुमेन्स हॉकी में भी मैच खेलना है। अच्छा, जीत लिया भारत ने मैच, माफ कीजिएगा, इंडियन ने 13-0 से भारत ने मैच जीतकर आगे बढ़ा। यह हांगकांग चाइना के विरुद्ध मुकाबला था जो 13-0 से जीता भारतीय टीम ने, वुमेन्स टीम ने, तो अच्छी शुरुआत उनके लिए भी। पर थोड़ा सा हमने देखा आवेश खान को जब थोड़ी बैक ऑफ लेन गेंदबाजी करी है, शायद ये ऋतुराज गायकवाड़ भी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि थोड़ा सा परेशानी में डाला बल्लेबाजों को, क्योंकि अब कंधे का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। 51 रन की दरकार है 20 गेंदों में, तभी भी अब लक्ष्य काफी कठिन है नेपाल के लिए, इतना आसान रहेगा नहीं। खासकर अगर डॉट डिलीवरीज आती हैं तो वो दबाव बढ़ता ही जाएगा, उस पर ध्यान केंद्रित, थोड़ा फील्ड में बदलाव। जो शॉट थर्ड पे अब खिलाड़ी आता हुआ, जो डीप थर्ड पे था, ये बैट बाउंस विकेट कीपर के आगे गिरी थी गेंद, थोड़ा सा और गेंद उनके हाथ से चटक कर चली गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाद। हालांकि गति में परिवर्तन किया था, गेंद पहले गिर गई थी और थोड़ा सा मिट्टी भी बाउंड्री के बाद। हालांकि गति में परिवर्तन किया था, गेंद पहले गिर गई थी और थोड़ा सा मिट्टी भी मैम, आपका ऑर्डर। ये मैक्सिकन, मोरक्कन और टेक्सास बार ना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। सारे फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं। मैं गोवा फ्रेंड्स के साथ। जी लेने दीजिए इसे अपनी जिंदगी साल्टी। और एक बार वो गोवा चली गई तो आप इस घर को अपना गोवा बना लेना। चले जाओ। स्वीट एंड सॉल्टी साथ चबाए बात बन जाए पार्ले क्रैक जैक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। और अंतिम गेंद पर सफलता मिलती हुई वहां पर आवेश खान को 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और भारत एक बार फिर वापसी करता है। अर्शदीप अपना अंतिम ओवर लेकर आगे बढ़ते हुए, फिर शॉट पे गेंद थी, उछाल खेला है वहां पर, फिर सीधा कैच वहां पर यशवी जायसवाल को भी, और एक 8वां झटका लगता हुआ वहां पर। अब भारत की नीच लगभग निश्चित होती जा रही है। बचपन की डाली पे ख्वाब है लटके, थोड़े पके हैं थोड़े हैं कच्चे। देखिए मंगोलिया के विरुद्ध सबसे तेज शतक लगाया है, तो कहीं ना कहीं देखिए मंगोलिया के Get big exchange offers. Amazon Great Indian Festival. Come. सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
बचपन की डाली पे ख्वाब। और 8 विकेट गिर चुके हैं नेपाल के। अब लगता है कि भारत की जीत काफी करीब आ चुकी है और अर्शदीप को मिलने वाली दूसरी सफलता थी वहां। पिछले ओवर में भी उन्हें 1 विकेट मिला था। दूसरा अच्छी गेंद धीरे से प्लेस किया, उसे ऑफसाइड पर रन लिख चुका लिया बल्लेबाजों ने और 157 8 विकेट नुकसान। जी हाँ, बिल्कुल। ये भारतीय खेमा वीवीएस लक्ष्मण, सराज भुतुले जो कि जुड़े हुए हैं भारतीय टीम के साथ, इनके जो इनपुट्स हैं काफी फायदेमंद साबित होंगे ये युवा खिलाड़ियों के लिए। थोड़ी समस्या जो नेपाल की है, क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा था तो वो बड़े शॉट्स के लिए जाना ही था। 8 विकेट गंवा दिए, 18वां ओवर चल रहा है अभी। संदीप लामिछने आए हैं नए बल्लेबाज, केसी वहां पे मौजूद हैं। 46-16 गेंदों में लगातार वो कठिनाई बढ़ रही है नेपाल के लिए। इस बार एक मौका उसका रनआउट का। जी हाँ, डायरेक्ट हिट की दरकार थी। बैकअप बहुत अच्छा, काफी आगे निकल गए थे वहां पे, पर ये बैकअप की तारीफ करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट हिट होती तो इस एंगल से भी प्रतीत हो रहा है कि जी हाँ बहुत दूर रह गए थे, बहुत दूर। और थोड़ा सा अर्शदीप को भी विकेट के पीछे, हालांकि कई बार आप फॉलो थ्रू में होते इतना आसान रहता नहीं, थोड़ा विकेट के पीछे होते तो और आसान होता। हालांकि समय था उनके पास, अर्शदीप के पास, मगर रनआउट का मौका बना था, वो गवा दिया। और ये अच्छी गेंद थी वहां पर, यॉर्कर लेंथ पे कि उसको ड्राइव किया, उसे ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर फील्ड किया जाएगा। 203 का लक्ष्य का पीछा करते 158 18वां ओवर चल रहा है। भारतीय खेमा काफी खुश है और नेपाल के खेमे में थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि ये मैच हारने के बाद वो लोग टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। भारतीय टीम फिर मेडल तालिका में आगे बढ़ती नजर आएगी। पोडियम फिनिश करना है तो भारत को अगला मैच भी जीतकर आगे बढ़ना होगा और भारत की लिए काफी उम्मीदें हैं कि वो गोल्ड मेडल जीत कर आएगी क्रिकेट मैन में भी। अच्छी गेंद वहां पर, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी। बल्लेबाज बीट हुए डॉट बॉल आती हुई, तो डॉट बॉल से प्रेशर बढ़ गया है। हालांकि अब बहुत मुश्किल नजर आता हुआ है नेपाल के लिए। 158 8 विकेट नुकसान पर 45 रन चाहिए 13 गेंद पर। हमने आईपीएल में देखा था कि आईपीएल में काफी बड़ा स्कोर लास्ट के अंतिम 3-4 ओवर में बल्लेबाजों ने बनाया था। रिंकू सिंह उसका एक उदाहरण थे, जिन्होंने अंतिम ओवर में 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को मैच जिताया था। क्या नेपाल के बल्लेबाज ऐसा कर सकते हैं? एक बार फिर फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला ऑन साइड पर और ये मिसफील्ड एक और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए ओवर की समाप्ति। 162 8 विकेट नुकसान पर। बाउंड्री फॉर लटके। गांव की बहुत याद आ रही है, पता नहीं कब जाऊंगी। देखेंगे मॉम। हे चैंप, रेडी फॉर स्विट्जरलैंड? नो पापा, नो स्विट्जरलैंड। तो कहाँ? दादी के गांव। थोड़े से मैंने अपने जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी, जी माने जीनियस। To the penultimate over, bowled by the front line seamer. Ravish Khan is, as you say, brought back. Perhaps trying to just clean this up now. The teams tend to have their number one bowler tends to bowl the penultimate over in a run chase because they always want to have a large score to have to go and get in the last over. You never want to have your best bowler having to defend 3 or 4. That's been hit sweetly. No need to jump for that one. boundary for Nepal. Kishore just watches that one go over the top. They're still wagging the tail. Oh, this is another clean strike from a back of a length delivery. I tell you, I'd be very interested to know, as far as the boundary count goes, if Nepal have hit more sixes than India.
It must be close. Well, I think that's their 13th, isn't it? And edge and 4. Yeah, I think it was 12 from Boundary India. ball for Nepal. Well, here we go. Here we go now, because there's 10 of 3 deliveries. So we're definitely going down to the last. Just what can they do of these last 3 deliveries to put that 5th bowler, and we don't know who it's going to be, to put him under immense pressure. Better. Good comeback. Oh, keeper stopped that one. Yeah. Don't think he'd be keeping in the next match if he had let them gone through. 2 boundaries here would be very interesting for Nepal. Doesn't have to both be out the ground. A 6 and a 4 would be lovely if you're a neutral. Well, obviously there's odds stacked against them, but just bear in mind they're going 9.2 and over themselves. That's against India. That's not a bad effort. Great effort. Closer than many thought. The Indians have gone a bit quiet in the crowd. So have the Nepali fans as well. There's a man down there. Will just be a single. Nicely bowled. Nicely bowled. He was expensive in the first 3. He's gone for a few here in this 4th over. Khan not been plain sailing for him. Has a couple of wickets. Well, both their spinners went for 6 and over. Up in the air. Should be taken. And is. He's had some catches to take down on that long on boundary. That. बैग किसका है? मेरा। No fruit on plate. नहीं है। अच्छा, ये क्या है? देखो, किधर है? ये लो। पार्ले कच्चा मैंगो बाइट, कच्चे आम का कॉपी। और जनाब, हमने सुना है महंगाई की वजह से आपके यहाँ कुछ चल नहीं रहा है। आपके हिंदुस्तान में फॉग तो चल रहा है ना? और कुछ चले ना चले, इंडिया में तो फॉग चल रहा है। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। It's a good catch, a bit easier this time. Didn't have to put the dive in. We've got Avinash Bohara. One more over to go. 30 needed. So the ball gets thrown to Shivam Dubé, who has all of 30 to defend. So that's the reason why they bowl the number 1 bowler, that penultimate over. Just eases the pressure a little bit on the 5th bowler. Everything's got to go out the ground. Swing and a miss, and India can start to breathe easy. Yeah, and in the context of it, people will look at the scorecard and see India win by X amount of runs and say, well, that's pretty comfortable. But I tell you what, there's been periods of this game where India would have got a few jitters. Granted, there's a number of their players that are doing duty for India at a 50-over World Cup at home, who would ordinarily make this team. But the depth that India has in comparison to the depth that Nepal has, this has been a wonderful performance by Nepal in this quarterfinal. Oh, good fielding of his own bowling. Dubé has been taken to the boundary several times. It's been a bit of a difficult spell for him, but he's coming back well in this last one.
much better. This innings that started with a bang is ending with a bit of a whimper. Well, where were these Yorkers? Mind you, you are bowling to the last pair. You know it's in the bag. You relax a little bit, don't you? And that helps. Still trying to find the boundary. One more ball to go. Nepal will depart this competition, but not without a few records and a bit of respect to their name. Finish their innings, and that about sums up the attitude they've had all the way through. It's India who progressed to the semi-finals, but Nepal who have impressed in one of